Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the lecture that I am going to deliver today is very important. It is important that is one of the comprehensive lectures or one of the part of speech that is called adverb. Personally, I have an opinion that the use of adverb is more technical than any other part of speech because it is linked with verb, adjective, and other adverbs. So, without any delay, we directly go towards the slides. Today, the slides are prepared very uh, carefully and they're very smart and they're very comprehensive, and you will write down everything that you come to know from there. So please be very attentive, and because it is these days are very crucial for you, and you must utilize these free facilities from the teacher side. Okay, Janab, let's start. Uh, yes. So today we are going to discuss the adverbs. We are going to discuss the adverbs. Just wait. Just wait a moment. Inshallah. So, first of all, we should keep in mind that these slides, the lecture that is going to be delivered on the concept of adverbs, is for all tests for your annual examinations. And when you're free, you should learn everything in a very mature and comprehensive way so that you will utilize this knowledge on all the level of tests. You know, there are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. We discussed all these in the previous lecture. हमने पहले इसको डिस्कस किया था. अब वो लेक्चर देख सकते हैं. इनको brief introduction. We gave the brief introduction of all these. Next, introduction of part of speech is already done. Introduction to adverb, that is our topic today. The types of and position of adverbs, usage of adverbs, and practice questions and past questions, past examination questions, past test questions. So we go to next slide. Introduction to parts of speech. Just to revise, refresh your concept of the part of speech. Just for a while. In the English language, words can be considered as the smallest elements that we have distinctive meanings, based on their use and functions. देखिए जो word होता है ना, वो meaning अपने use और function के तहत देता है. एक ही word एक sentence में और meaning देता है, किसी और sentence में और meaning देता है. So words have the contextual meaning. Words are categorized into 8 parts of speech. तो आपको पता ही है, you know it very well. Yes. Next we go toward introduction of adverb. So introduction of adverb is very important because it is the topic that we are going to discuss today. We already briefly discussed it in the previous lecture on the part of speech. The word which
add meanings to a verb, adjective or an other verb are known as adverbs. Adverbs add meanings to every part of speech except a noun and pronoun. So these are the famous examples below: quickly, very, neatly, often. Next we go to the first type, that is the adverb of manner. An adverb of manner tells how something is done or happens. ये बताता है कि जो वर्ब है वो हुआ कैसे है, ठीक है, वो स्लो हुआ है, वो फास्ट हुआ है, वो खुशी में हुआ है, वो गमी में हुआ है, कैसे हुआ है, सख्ती से हुआ है, नरमी से हुआ है, इट डिपेंड्स। तो सबसे जो बड़ा फंक्शन होता है एडवर्ब का, यू नो इट वेरी वेल, दैट इज टू अफेक्ट द वर्ब। अच्छा, एंड टू ऐड इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन adverb of manner tells how something is done or happens. Most adverbs of manner end in ly. जनरल इनके एंड पे ly आता है, जैसे badly, happily, sadly. एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात, ये बड़ी सी स्मार्ट बात याद रखें कि इनके आमतौर पे एंड पे ly आता है। बस एक बात, एक बड़ी बात यहाँ से स्लाइड से आप निकाल लेंगे। यूज इन सेंटेंसेस: The brothers are badly injured in the fight. They had to act fast. At the advanced level of 88, she still sang. She still sang very well. अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर याद रखना, जो फास्टली है ना, ये एडवर्ब अब स्टीरियोटाइप हो चुका है, वो यूज नहीं होता, अब फास्ट ही वर्ब यूज होता है। ओके, नेक्स्ट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये तीन बातें हर एक टाइप ऑफ एडवर्ब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स डेफिनेशन, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। हम जिस एडवर्ब की तरफ भी जाएंगे ना, पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन कराएंगे हर टाइप की, कि वो किस तरह का होता है। इस तरह भी हम लास्ट पे चले जाएं तो इस पे हमने ये इंट्रोडक्शन किया है कि ये जो है इसके it tells how something happens, and most of the adverbs of manner end in ly. ये एक बात हमें ये इंट्रोडक्शन में मिल गई, डेफिनेशन में मिल गई। अच्छा, फिर हम आगे गए हैं, अब हमने इंट्रोडक्शन के बाद उसको हमने पोजीशन पे जाना होता है। ये यूज किस जगह पे होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बल्कि एडवर्ब में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो इनकी होती पोजीशन है। जो एडवांस लेवल के टेस्ट और एग्जामिनेशन होते हैं उनमें यही मसला आता है सबसे बड़ा, और अगर आप ये बिल्कुल रूल सीख लें तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो इन द एंड, adverb of manner are usually placed in the ends after the action verb if there is no object given in the sentence. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो फिर भी एंड पे आएगा, तो फिर तो जरूर एंड पे आएगा, फिर तो आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दोबारा, adverb of manner are usually placed in the end after the action verb if there is no object given in the sentence. इस तरह she ate quickly, अब पता नहीं क्या खाया, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके फौरन बाद ये एक्शन के फौरन बाद आएगा जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक बात, एक रूल तो माइंड में रख ले कि adverbs of manner are mostly used in the end of the sentences if there is no object. अच्छा, after the object, adverb of manner are usually placed after the object if given. अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर उसके बाद आएंगे। अच्छा, she sings the song nicely. अच्छा, ऊपर आया था ना she ate quickly, मैं कह सकता हूं she ate bread quickly। अगर ब्रेड आ जाएगा तो क्विकली उसके बाद यूज होगा, ठीक है। और अगर ब्रेड नहीं है तो ज़ाहिर है वर्ब के फौरन बाद ये यूज हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, दूसरी बात याद रख रही है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एंड पे,
अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद, ये स्लाइड आप नोट कर लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, next are the adverbs of degree that we will discuss. An adverb of degree tells to what extent something is done or happens, किस हद तक कोई काम हुआ है, मुकम्मल हुआ है, करीबन हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत कम हुआ है, बिल्कुल हो गया है, तकरीबन हुआ है। इस तरह के जो उर्दू में एक्सप्रेशन होते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं ऑलमोस्ट, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, वेरी। So it was too dark, for example, using the sentence, it was too dark for us to find our way out to the cave. The referee had to stop the match when it began to rain heavily. His daughter is quite fat for her age. The accident victim nearly died from his injuries. यानी जो एक्सीडेंट का विक्टिम था, जो बंदा एक्सीडेंट का शिकार हुआ, वो तकरीबन मरने ही वाला था। हर डाटर इज क्वाइट फैट, उसकी फॉर हर एज, यानी उसकी जो बेटी है वो अपनी उम्र से कोई ज्यादा ही फैट है। द रेफरी हैड टू स्टॉप द मैच व्हेन इट बिगेन टू रेन हेवीली। हेवीली जो है यहाँ पर ये आएगा when it began to rain heavily, so it was not underlined. When it began to rain heavily. Next slide. Position of the adverb of degree, मैंने आपको पहले भी कहा, पहले बताना है कि वो क्या है, जो एडवर्ब की टाइप है वो क्या है, वो इफेक्ट किस चीज को करती है। फिर बताना कि यूज सेंटेंस में कितने नंबर पे होता है, पहले, दरमियान में, बाद में, 3 लेवल होते हैं। तो इन मिड पोजीशन जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है ना, याद रखना, ये लिख ले कहीं बात, ये दरमियान में यूज होता है। These words go in the middle, really, very, quite, usually, I really like those pink, इन हमेशा ये मिड पे यूज होते हैं। अच्छा, these words go in the end, जो इस तरह के वर्ड है वो एंड पे यूज होते हैं। a lot, a bit, I would just like to change things a bit, ये 2 तरह के हैं। मोस्टली जो है वो मिड में यूज होते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं, एक्सेप्शन होती है हर एक के अंदर, आपको पता है, तो वो एंड पे यूज होते हैं। ये a lot है और a bit है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जनाब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये होते क्या है? An adverb of frequency tells how often something done or happens, कि वो काम कितना ज्यादा यूजुअल होता है, यानी अक्सर कितना होता है। बहुत ज्यादा रिपीट होता है, कम रिपीट होता है, ये होता ही रहता है। वर्ड यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स, इस तरह के वर्ड होते हैं भाई जो बताते हैं कि जो काम है ना वो कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, होता रहता है, कभी नहीं हुआ है, मतलब ये जितना भी। अच्छा, ये देखें, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है अगेन, ऑलवेज, एवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली, हार्डली एवर, नेवर, ओकेजनली, ऑफन, रियरली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ट्वाइस, यूजुअली, वीकली। Yes, use in the sentence. He hardly ever says something nice to his wife. While overseas, he frequently phoned home. जब वो बैरून मुल्क था तो वो अक्सर घर कॉल करता, फ्रीक्वेंटली के माने अक्सर, अक्सर और बेशतर। He complained that she had never smiled, never तक कभी नहीं। We write to each other very occasionally, तक कभी कभार, बहुत कम। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सेंटेंस में कितने नंबर पे इस्तेमाल होते हैं? शुरू में आते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आते हैं, मिड में आते हैं, एंड में आते हैं, 3-4 पोजीशनें हैं। अच्छा, बिफोर द एक्शन
वर्ब, याद रखें। ये आमतौर पे एक्शन वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। Adverb of frequency is normally written before the action verb but after the helping verb. याद रखना, इसकी बड़ी टेक्निकल पोजीशन है। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन से पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब के पहले, यानी यूं कह लें कि हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के दरमियान में इस्तेमाल होता है ये जो है वर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सॉरी, नेक्स्ट वी go to the adverb of time. अच्छा, adverb of time tells us how something is done or happens. We use it at the beginning or at the end of the sentence. सही, इसको तो साथ ही हमने पोजीशन भी बता दी है, ठीक है, शुरू में ही स्लाइड, स्मार्ट स्लाइड बन गई, इसकी डेफिनेशन भी हो गई, इसकी पोजीशन भी हो गई। अच्छा, इस तरह के वर्ड होते हैं आफ्टरवर्ड्स, ऑलरेडी, इमीडिएटली, लास्ट मंथ, नाउ, सून, देन, यस्टरडे। देखिए ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है, हम तो इनको यूज करते हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो उसकी पोजीशन है हमें पता ही नहीं होता। मेरा ख्याल है बहुत कम स्टूडेंट को पता है कि लास्ट मंथ है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो लास्ट मंथ को बस लास्ट मंथ समझता है। क्योंकि जब आप लैंग्वेज को स्टडी करते हैं ना, फिर इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जब उसको आप स्कैन करते हैं, जब उसको सेंटेंस लेवल पे उसका ब्रेकअप करते हैं, उसकी डिसेक्शन करते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं। तो ये है भाई। नेक्स्ट है इनकी यूजेज। He clapped and died yesterday. Yesterday अब यहाँ पर याद रखें adverb of time है। His factory was burned down a few months ago. Last week we were stuck in the lift for an hour. Kind of adverb of time, ये देखें, ये इसके दो लेवल होते हैं, indefinite time adverb of time और definite adverb of time। अच्छा, एक होता है always, often, usually, indefinite का जिसका पक्का पता ना हो ना, इस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार इसको पहले डिस्कस किया था टेक्निकली, आपको पता होगा। अच्छा, तो इनडेफिनेट एडवर्ब्स वो होते हैं जिनमें डेफिनेटली पता नहीं होता, ऑलवेज का पता नहीं कब शुरू होता है कब खत्म होता है, ऑफन कभी नहीं पता, तो वो इनडेफिनेट कहलाते हैं। अच्छा, तो जो डेफिनेट होता है उनका पक्का पता है, भाई यस्टरडे है, टुमारो है, नाउ है। अच्छा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, ये देखें, ये बड़ा वादे करके फार्मूला है, इसको आपने नोट कर ले। सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, एडवर्ब का जो पोजीशन है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आपका जो एडजेक्टिव है कोई। He comes here, sorry, adverb, ठीक है। अच्छा, जो indefinite adverbs हैं उनका ऊपर वाला फार्मूला है जहाँ आई लिखा हुआ है, और जो definite adverb है उसका ये फार्मूला याद रखना। यानी यूं कह लें कि जो indefinite adverb हैं वो सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल होते हैं, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है। और जो डेफिनेट है, जिस तरह यस्टरडे, अगो, टुमारो, नाउ, इन्होंने फिक्र के एंड पे इस्तेमाल होना होता है। ये जो आई है, इट स्टैंड्स फॉर इनडेफिनेट एंड डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेट। यानी यूं कह लें, आई का मतलब ये एब्रिविएशन यहाँ पर इनडेफिनेट की है और डी जो है वो डेफिनेट की है। ओके जी। अब इसके एग्जांपल लीजिए, ही ऑलवेज कम्स हियर। अच्छा, ही कम्स हियर ऑलवेज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और इस तरह के आपके तमाम टेस्टों में आते होते हैं क्वेश्चन। ही केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे ही केम हियर वो गलत है, ही केम यस्टरडे हियर गलत है। अब आपने यह टेक्निकल बात क्या याद रखनी है कि जो डेफिनेट इनडेफिनेट एडवर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आने हैं, और जो डेफिनेट हैं वो एंड पे आने हैं। ये फार्मूला बस आप राइट डाउन कर लें अपने पेजेस पर। यूज इन सेंटेंस, ही क्लैप्ड एंड डाइड यस्टरडे। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना अब हमने। अब हमारे लास्ट रह गए हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस।
Adverb of place tells where something is done or happens. इसकी मंडल क्या है? एक्शन जो है वो जा किधर को रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? Used after verb, object or at the end of a sentence. ये आम तौर पे ना सेंटेंस के एंड पे भी इस्तेमाल होता है और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये बड़ा रिच कंसेप्ट है, इसके ऊपर बड़ी बहस होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन आपकी जरूरत के तहत जो है उस पे हमने डाल दिया। अबव है, बिलो है, हियर, आउटसाइड, देयर, अंडर। कई बार एंड पे भी हाउस भी होता है, होम भी होता है, वो किसी और इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर वो जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जाकर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस का उसमें बड़ा किरदार होता है, तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर जो है वो अपनी जरूरत के तहत यूज कर रहे हैं। वी कैन स्टॉप हेयर फॉर लंच, स्कूल बॉय वाज नॉक्ड ओवर बाय स्कूल बॉयज, they rushed for their lives when fire broke out on the floor. पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये बड़ी अहम बात होती है। पोजीशन, इंट्रोडक्शन और पोजीशन, पोजीशन ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होती है एडवर्ब की, याद रखना। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं तमाम टेस्टों में और तमाम इम्तिहानात में। आफ्टर द एडवर्ब, अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस इज रिटन आफ्टर द वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। आई शैल गो देयर, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर एंड पे यूज होते हैं। अच्छा, ये थोड़े से एमसीक्यूज है। ही इज द बॉय हु हैज रिसेंटली वन द प्राइज। द अंडरलाइन पोर्शन इज एन, क्या है भाई? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हजार है। ये टिक किया हुआ है, आप समझ आ गई है बात की। इस तरह क्वेश्चन आपको इम्तिहानात में आएंगे। अच्छा, ये एक बड़ा बहुत बड़ी एक हार्ड वर्किंग से रॉयल, हमने इसका रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब तय कर लिया है। ये आप याद कर ले, इसको बल्कि यूं भी आप लिख सकते हैं कि ये है रॉयल ऑर्डर को आप अगर आप ब्रैकेट में डालें तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, जैसे आप लिखें जैसे आप लिख सकते हैं जनाब कि ये है एम, ये एम पी एफ टी पी, ये एम पी एफ टी पी। ये याद रख ले आप बात, ये जो एम पी एफ टी पी है ना, ये इसकी होती है पोजीशन एडवर्ब्स की एक सेंटेंस के अंदर आमतौर पे। आपको बड़े काम देगी ये बात अगर आप माइंड में रख लें। एम पी एफ टी पी, एम पी एफ टी पी, ये अब आपने ना माइंड में रख लेनी है। और ये एम पी एफ टी पी के नीचे हमने एग्जाम्पल भी दी हुई है। सबसे पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर फ्रीक्वेंसी का आता है, फिर टाइम का आता है, फिर उसका पर्पस का आता है। He swims excitedly in the pool every evening before dusk है, to keep in shape। ये उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस। तो ये एमपीएफटी जो है, जो एमपीएफटी को अगर आप एमपीएफटी के लिए याद रखें, पी एंड वाला ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, एमपीएफटी भी अब याद रख ले तो ठीक है। ओके भाई, तो ये डिस्क्रिप्शन है। वेरी एंड एनफ आर नॉट यूज्ड टुगेदर, याद रखना ये दोनों इकट्ठे यूज नहीं होते हैं। जनरल डिस्कशन, अब हम रूल नंबर 2 पे आ गए। ही इज वेरी काइंड एनफ टू मी, गलत है। ही इज वेरी काइंड टू मी, वेरी और एनफ एक फिक्रे में यूज नहीं होते। जरा सिंपल सी बात है, अगर आप जल्दी जल्दी इनको देखते जाते हैं। हाँ भाई, वेरी के बाद हमेशा फर्स्ट डिग्री आती है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है
फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जिस तरह टाल, टालर जो होती है वो सेकंड होती है और बाकी थर्ड होती है। फर्स्ट डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। याद रखना, एक बड़ी टेक्निकल टर्म नहीं है इतनी कोई भी है। अच्छा, फार मच है, इसके बाद हमेशा सेकंड कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है सेकंड डिग्री, यानी वर्ड वर्ब की। जिस तरह टाल है तो टालर। अच्छा जी, मच के बाद हमेशा थर्ड डिग्री आती है। फार और मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद मच बेटर आता है। फिर मच के बाद पास्ट या अकेला मच आए तो फिर उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। और वेरी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है एडजेक्टिव। ये नीचे आपकी। हाँ जी, इस तरह टायर्ड है, प्लीज्ड है, डिलाइटेड है, सरप्राइज्ड है, ओब्लाइज्ड है, शी इज वेरी हैप्पी, आई फील मच बेटर देन अली, Israel is much hated by us, I am very pleased at your performance. Okay, adjective is always used before that verb enough. Adjective enough is always used before noun. She is kind enough to help us. She enough kind गलत होगा। I have enough money, ठीक है। नाउन से हमेशा enough पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद में आता है। ये बात पक्की याद रखें। शी इज काइंड एनफ, ये एडजेक्टिव के बाद आ गया। आई हैव एनफ मनी, ये नाउन से पहले एनफ आता है हमेशा और एडजेक्टिव के बाद में आता है। ये बात वैसे टेक्निकली आप नोट कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है, इसको देख लीजिएगा। हाँ, ये बहुत यूज होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। माइजर, कवर्ड, ये देख लें आप। लव, फ्रेंड, डियर्स। अच्छा, मेरा हाल यू विल बी रीडिंग। तो ये इन अ माइजरली मैनर लाइक माइजर, in a cowardly manner like a coward, in a friendly manner like a friend, in a lovely manner. अच्छा, he lives miserably, ये गलत है, ये आपको भी पता है। ये फॉर्मेशन होना जो इनकी, ये याद रखना, ये इन अ मिजरली मैनर होता है, इन अ कवर्डली मैनर होता है, ठीक है। ये बस दो ही ज्यादातर यही यूज होते हैं, इन अ लवली मैनर। अच्छा, यूज एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडवर्ब आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स। ये बड़ी अहम बात है, ये नोट कर ले, बड़े अहम है ये एक्सेप्शन होती हैं और ये ज्यादा आ जाती हैं। बच्चा बेचारा रूल याद करता रहता है, वो एक्सेप्शन आ जाती है। इसकी एक्सेप्शन कई बार रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, एग्जांपल है, ही लुक्स एंग्री, ही इज वेरी सैड। अच्छा, नेक्स्ट जी, फास्ट इज बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब भी है। और ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं वो यकीन करें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको नोट कर लेना चाहिए। इज अ फास्ट बॉलर, यूं कह लें कि जब एक क्वालिटी जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगी। जब वही जो वर्ड है वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, यानी वर्ब को परफेक्ट करेगा, उसमें ऐड करेगा, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। He ran as fastly as he could. He ran as fast as he could. ये भी एक स्लाइड है, इसको देख लें, फिर आप इसमें से भी आपको फायदा हो सकता है। हाँ, इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात है, ये सम टाइम और सम टाइम्स, ये बड़ी बड़ी अहम बात है और इसको अक्सर रॉन्ग यूज करते हैं और ये अक्सर आपके टेस्टों में आता है ये एडवर्ब।
भाई सम टाइम का मतलब होता है इनडेफिनेट लेवल पे, यानी कि कभी कभार, पता ही नहीं। जबकि जो सम टाइम्स है ना, इसका मतलब है जो काम आप अक्सर करते रहते हैं। ठीक है, यार सम टाइम्स आई रिमेम्बर हिम, आई मिस हिम, यार मैं उसको ना कभी कभी याद कर लेता हूँ, इसका मतलब आप अक्सर याद करते हैं। सम टाइम आई मिस हिम सम टाइम, यानी कि शायद इसको कभी याद आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सम टाइम इज यूज्ड आफ्टर एन एडवर्ब, after a verb sometimes is used at the beginning or at end of the sentence। यानी सम टाइम जो है ये वर्ब के बाद आता है, और जो सम टाइम्स है ये या तो शुरू में आता है या एंड पे आता है। ठीक है, एवरीथिंग हैज टू एंड सम टाइम, हर चीज ने कभी खत्म होना है। ठीक है, सम टाइम्स शी विश शी वर बैक इन इंग्लैंड, ये दूसरे वाला है जो मोस्टली होता है काम। ओके, नेक्स्ट, it is cool now but sometime it gets very warm here। as a whole means generally, and used in the sentence, whereas wholly means completely after the used is used after the auxiliary or main verb। He was wholly convinced, as a whole the essay was excellent। Next, wholly we are in the agreement। Examples, next examples, it is very important, never, never when qualify the whole class, यानी जब नेवर पूरी क्लास के ऊपर सरअंदाज होता है ना, कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास टेक्स हेल्पिंग वर्ब आफ्टर इट, ये शुरू में आ जाता है और अपने फौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अक्सर टेस्टों में आ जाती है चीज। नेवर डज ही कम हियर लेट, कम लेट, नेवर विल ही रिटर्न होम, लेकिन जब ये बाद में आएगा तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ही विल नेवर रिटर्न होम। ओके, क्योंकि शुरू में आएगा तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएगा। इनको जरा गौर से पढ़ ले, वेरी इंपॉर्टेंट। हाय है, ये कंफ्यूज करते हैं, हाय हालांकि बुलंदी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो हाईली है ये डिग्री और रेट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ही क्लाइम्ड हाई ऑन द लैडर, वो सीढ़ी के ऊपर बुलंदी पे चढ़ गया। हाईली, दीज आर हाईली पेड वर्कर्स, ये जो वर्कर्स है इनकी बड़ी जनाब तनख्वाह है। तो क्लोज का मतलब होता है जो करीब हो, नॉट वेरी फार इन द पोजीशन, रिलेशनशिप और टाइम। डोंट गेट टू क्लोज टू द फायर, आग के करीब मत जाओ। और क्लोजली का दूसरा मतलब इन क्लोज मैनर, ये होता है करीब, टू ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजली कनेक्टेड, बड़े करीब करीब हैं, यहाँ पर आके उसके माने बदल गए। ठीक है, फ्री कॉस्टिंग नथिंग, एक होता है फ्री मुफ्त के मानों में। ठीक है, सेट द डॉग फ्री विदाउट एनी, या किसी को आजाद कर देना। फ्रीली इन ए फ्रीली मैनर, ही रैन फ्रीली, वो आजादी से दौड़ा। डायरेक्ट विदाउट डेविएशन, डायरेक्टली विदाउट डिले और हेजिटेशन, दोनों मिलती जुलती तो वर्ड है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ही वेंट डायरेक्ट टू द ऑफिस, तो ही आंसर डायरेक्टली। डियर के माने प्यारा भी होते हैं, लेकिन डियर के माने जो होता है महंगा, जिसपे बड़ा खर्चा है, वो भी होता है। दिस कास्ट हिम डियर, द डियरली with much loss and suffering। These are very important। अच्छा, ये अब सेंटेंसेस हैं that you should practice for exercise, इनको नोट डाउन करें। अच्छा, when you will note down them, I'll give you the key in the next slide।
But first you should try to solve it by yourself without looking at the key. की को देखे बगैर जो है पहले वैसे अपने तौर पे अपने जो प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर आपने सीखा है उस अपने नॉलेज को चेक करें कि कहाँ कितने हद किस हद तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. मैं अक्सर कहता हूँ ग्रामर का साइंस ऑफ लैंग्वेज. तो काइंडली नोट डाउन ऑल दीज एंड ट्राई टू करेक्ट देम. It was bitter colds. I couldn't help not overhearing their conversation. So overhearing के माने तो चुप कर सुनना. जरा मैं आपको थोड़ा मानी बता देता हूँ. I ever remember having seen a more interesting film. The story was too interesting. She hasn't got no children. This hardly won liberty cannot be highly abandoned. This hardly won liberty जो बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिलती है कैन नॉट बी लाइटली अबेंडन. इनको बड़ा हल्के से बंदा छोड़ नहीं देता. बंदा ऐसे इसको तर्क नहीं कर देता. अबेंडन होता है गिव अप कर देना, तर्क कर देना. आई एम मच हैप्पी टू सी यू. नो वन राइट्स एज नीट एज शी डज. शी sang sweet. I felt so lonely. I don't know nothing about the matter. Next. तो ये उसके आंसर है. नोट डाउन कर लें. नीचे रीजन भी लिखी हुई है. इट वॉज बिटरली कोल्ड. तो क्या प्लेस होनी चाहिए थी उसकी? इट वॉज कोल्ड बिटरली. आपको पता है ये आमतौर पर एंड पे इस्तेमाल होते हैं. नीचे भी सारी रीजंस लिखी हुई हैं. आई कुड नॉट हेल्प. हाँ उसमें नॉट दोबारा आ गया था. यस. आपको पता है कि वो जो बिटर है उसकी जगह पे जो बिटरली का यूज होना था. ठीक हो गया. एल में उसके साथ नहीं लगाया उसको एडवर्ब बनाने के लिए. वैसे तो कॉमन सेंस में यूज हो जाता है लेकिन वैसे मतलब यहाँ पर जब एज ए ग्रामर स्टडी हम कर रहे हो लैंग्वेज में तो चलो इट वाज बिटर कोल्ड चल जाता है. लेकिन जब व्हेन वी आर स्टडीइंग अ लैंग्वेज देन वी शुड कीप इन माइंड द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये डबल नेगेटिव इसमें यूज हुआ था. आई नेवर रिमेंबर हैविंग सीन अ मोर इंटरेस्टिंग फिल्म. इसमें रॉन्ग यूज ऑफ एवर एंड नेवर हुआ है. ठीक है. स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें भी गलत यूज हुआ है. शी हैज गॉट. डबल नेगेटिव इसमें भी यूज हुआ है. नेक्स्ट भी आप रीड कर सकते हैं. हार्डली कंफ्यूज विद हार्ड. Hard won liberty cannot be highly abandoned. I'm very happy to see you. इसके यहाँ पे मच नहीं आ सकता है. ये रीजन भी लिखी हुई है. You can see. You can write down the answers. She sang sweetly. Wrong use of adverb in the place of adverb. In place of adverb. Wrong use of adjective, sorry, in the place of adverb. I felt very lonely. You can have the look on all the slides. I'll be silent now and you will write down. Answers are there. MCQ number 3. Number 4.
Number 5. Number 6. Number 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. These are the MCQs. 2014 के ये एनुअल एग्जाम में आए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। देखिए भाई, ये जो स्लाइड थी ना, ये बड़ी, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बड़े टॉपर्स और जिनके एम्बिशंस हैं कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले। हाँ, ये आम बच्चों के लिए नहीं है, उनके बड़ी माजरत के साथ उनको इस पर टाइम नहीं लगाना चाहिए। These are crucial and very decisive for those who have the greater ambitions to become engineers or doctors. Thank you very much for joining me today. I hope, inshallah, you will watch them carefully and utilize them in your tests and all examinations. Thank you very much.